out. So I'm taking some extra questions on the basis of exercise 3.1 and 3.2. Concepts we will use of first exercise and second exercise. Now question extra question. Question number 1. Find the angle between between the minute hand, the minute hand clock and the hour hand the hour hand when the time is when the time is 7:20 a.m. If in a clock time is 7:20, then what is the angle between the minute hand and hour hand? ठीक है? This is my question. Important question है. 7:20 beta. Suppose here we have 7 somewhere here and 24 is here. This hand is bit larger than our hand. So this angle we have to find out, right? One important thing in this solution is we know that our hand completes its one rotation in how much time beta? Our hand completes in one rotation in 1 day. 1 day. Anyone 12 else? hours. 12 hours. बेटा जो आर हैंड होता है वो 12 आवर्स के बाद फिर से दूसरी उसी सेम जगह पे आ जाता है. ठीक है? इट मींस दैट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 12 आवर. राइट? सिमिलरली minute hand complete its one rotation Sir, your video has stopped. 1 hour. Video pause beta for everyone. No, sir, beta it is visible to me. No, it sir. is visible beta. Sometime beta it is if your side network is slow na, then it will be affected beta. एक बार check करो beta. Anyone joined late beta, please inform me, otherwise will not get the attendance beta. Anyone who has joined late? Rishabh बेटा complete बताओ. ऋषभ सिंह. Yes. ऋषभ सिंह. Now similarly minute hand completes in one rotation in how much time बेटा? 60 मिनट के बाद फिर से उसी जगह पे पहुंच जाती है वो after 60 minutes. So this is not the part of the solution, but we should know these two points better. The hour hand completes its one rotation in 12 hours and minute hand completes it one rotation in 60 minutes. So 720 hour. We have 720 hour. So first complete in terms of hour. This is 7 hour 20 minute beta.
so we need to make it complete R. तो मुझे बताओगे भाई कितने R बनेंगे ये टोटल? बोलो भाई। 7 hours 20 minutes is equal to 7 plus 20 by 60 hours. Now I've converted this 20 minute into hours. So what is this? 7 plus 1 by 3 hours. And finally it is 22 by 3 hours. When time is 7:20, our hand is saying this data with 22 by 3 hours. Right? And 20 minutes we have already. 20 minutes. तो मिनट की कैलकुलेशन मिनट हैंड 20 मिनट में 20 मिनट का राउंड कंप्लीट कर रही है ये। ठीक है। नाउ 22 by 3 hour. So angle in 12 hours. एंगल इन 12 आवर बताओ बेटा कितना होगा? 360 डिग्री। एंगल इन 1 आवर कितना होगा बेटा? 30 degree. 360 by You're not audible and your video has stopped. Yes beta. My voice not audible to everyone beta? No, sir, it is audible. It is Sir, audible. it's audible. बेटा एक बार से ना रीजॉइन करो आप, मैं वेट करता हूं 2 मिनट के लिए। ठीक है। हेलो, किसकी आवाज थी बेटा जिसको प्रॉब्लम आ रही है? फेसिंग बेटा yes. Now my voice is audible to you beta? Yes, sir, it is. Who's facing that problem beta? Who's that child? Sir, Aryan Sinha. Aryan Sinha. Aryan Sinha is in class or not? Sir, I don't think he can hear you. Aryan, am I audible to you? Sir, he is in the class. He is in the class but he is not responding beta. Aryan ji, Aryan Sinha. Should I continue beta? He is facing some problem. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So angle in 12 hours is 360 degree beta. Angle in 1 hour is equal to. Now angle in, because we have total hours is 22 by 3. So angle in 22 by 3 hours is equal to 30 degree into 22 by 3. What will be the calculation beta? It is equal 220. to 220 degree. Right? So this is the angle made by our hand in 7 hour 20 minute बेटा। ठीक है बेटा? देखो आपने 22 by 3 क्यों लिया है बेटा? जब हम 7 hour 20 minute चेक करेंगे तो जो आर हैंड है वो that will not be exactly at 7.
ठीक है ना बेटा, 7 पे नहीं होगी एग्जैक्टली, थोड़ा सा ऊपर होगी वो। जब 7 आवर 20 मिनट 15 मिनट 30 मिनट होते हैं तो एग्जैक्ट 7 पे नहीं होती, इसीलिए मैंने आर हैंड को कंप्लीट बनाया है। ये दिस इज 22 3 आवर्स, बिकॉज आर हैंड 20 मिनट में भी थोड़ा सा मूव किया उसने इतने टाइम पे भी, तो इसलिए टोटल आवर्स निकाले मैंने, एंड टोटल मिनट वी हैव 20 मिनट। So now angle covered by minute hand in 20 minutes that we have to find out. So now next step is angle in 60 minute. We know that one rotation is complete in 60 minutes. So angle in 60 minute again 360 degree better. Angle in 1 minute, it is equal to 360 by 60 is equal to how much angle better? 6 degree. Now angle in 20 minutes, this is equal to 6 into 20, 120 degree, right? Now my question is, find the angle between the minute hand of a clock and the hour hand when the time, so required angle is equal to larger angle minus smaller angle is equal to 100 degree. This is my answer, beta. This is the answer, beta. Anyone having any doubt in this question, please tell me, beta. Otherwise, I am giving you one question for practice now. Question is, find the angle between the minute hand of a clock and the hour hand when the time is 7 hour 20 minutes, right? 7:20 AM. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? 7:20 PM. तो आपके पास अभी सॉल्यूशन है, व्हाट इज द एंगल व्हेन टाइम इज 7:20 PM. नाउ दिस इज माय क्वेश्चन. नेक्स्ट फर्स्ट करो बेटा, एक बार करो बेटा एक बार, एंड टेल मी व्हाट विल बी द एंगल PM. Sir, please repeat the question. Question is same language beta. All of you beta, please write down. Find the angle between the minute hand of a clock and the hour hand when the time is 7:20 PM. Instead of AM, it is PM beta. So what Sir, will in be this question, why did you subtract 100 from 220? 100 नहीं, 20 220 120 beta. 120. बेटा ये है ना एंगल, एंगल निकालना है, तो ये आपका कितनी बार घुमा? 22/3 आवर्स, इसने इतना लिया, और 20 मिनट में आपके पास, तो आपने जो एक्चुअल में, अगर मैं यहां से इसको स्टार्ट मानता हूं दोनों को, इस जगह से आर हैंड भी यही है और मिनट हैंड भी यही है, तो फॉर रीचिंग 7 आर हैंड ने कितना रोटेशन कंप्लीट किया, ठीक है, और फॉर रीचिंग 20 मिनट मिनट हैंड ने कितना रोटेशन कंप्लीट किया। तो डिफरेंस एंगल निकालना है ना, तो एंगल क्या हुआ बेटा? इन दोनों में से इसने कितना कवर किया और इसने कितना कवर किया, सब आगे पहुंच रहा है आपका आर हैंड, तो आर हैंड में से आपने मिनट हैंड का रोटेशन माइनस कर दिया, तो आपका इसके बीच का एंगल आ गया। जो हमने L/R वाला नहीं पढ़ा था बेटा, सेक्टर वाला, जो हमने थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है बेटा, बोलो। Yes, sir. अब निकालो इसको, अगर सोल्यूशन क्लियर है तो बताओ, नहीं तो सोल्यूशन एक बार और रिपीट करता हूँ बेटा। ये आपके जेई लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, 1:20 AM का बताओ, ठीक है ना, 3:20 AM का बताओ, 3:20 PM का एंगल बताओ। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट पर्टिकुलर टाइम बेटा। So please turn over the page. ओके बेटा। सर 12 o'clock में तो डिफरेंस ही होना चाहिए 7:20 AM और PM में। 12 आवर्स का
सर क्लॉक में डिफरेंस तो 190 चाहेगा 720 AM हो या PM हो। सर क्योंकि एंगल तो सेम रहेगा ना। तो आपका आंसर क्या है बताओ? सर 100 डिग्री होना चाहिए। 100 डिग्री? हाँ, कोई और अपना Yes input- sir, 100 degree. कोई और अपना इनपुट देगा बेटा? Yes sir. Sir 100 degree. 100 ही होगा ना? देखो मैंने इसीलिए Yes. पूछा, देखो किस जिसने भी इतना टाइम लगाया बेटा, वो टाइम तो लगाया लेकिन आंसर उसने सही दिया है। देखो जब 720 हो रहा है, एक्चुअली 720, तो एंगल जो शेप है इस डायग्राम की शेप वो तो सेम बनेगी, तो एंगल भी सेम ही होगा। बट कुछ बच्चे इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब वो 12 आवर्स को भी जो एक रोटेशन होता है, क्योंकि जब 720 होगा तो 1 रोटेशन आर एंड कंप्लीट कर चुका होगा, दैट विल बी इन सेकंड रोटेशन, तो वो उसको आगे ले जाते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन करेगा तो कोई फर्क नहीं आता, ये हमारा 100 ही रहेगा बेटा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता AM और PM से, क्योंकि टाइम आपका वही है बेटा। ठीक है ना? जो शेप बन रही है, जो डायग्राम बन रहा है 720 का, दैट इज सेम 720, दिस इज सेम एट द टाइम ऑफ 720 AM एंड 720 PM। ठीक है बेटा? चलो अब एक और लेते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको AM PM नहीं बोल रहा, टाइम इज 3:30 नाउ, व्हाट इज द एंगल? टाइम इज 3:30 नाउ, व्हाट इज द एंगल? Sir 75. Sir 90 degree. 1 second, 75 degree and 90 degree। 90 कैसे बता रहा है बेटा कोई बच्चा? 90 बेटा 3:30 पे 3 एग्जैक्टली 3 पे नहीं होगा। Sir sorry 45. नहीं sorry sir. हाँ देखो कुछ बच्चे ना सिर्फ डायग्राम से कोशिश करेंगे यार ये तो 90 डिग्री का बन रहा है। नो बेटा, सर 330 बोला है ना आपने? 3:30 बेटा, 3:30। One answer we have 75 degree and another answer is 90 degree। 90 तो completely wrong बेटा, so one answer is 75 degree। Whose answer is this बेटा 75 degree? Sir 75 degree। सॉरी क्या नाम था बेटा? Sir Aman. अमन का आंसर है 75 डिग्री। एक और आया बेटा, किस बच्चे का आया है? 70। 70। Yes sir, एक आंसर आया, 75. एक और 75 आ गया। Sir 75. 75 डिग्री। So can you tell me what is the total angle of 3 hour 30 minute बेटा? आर हैंड का कितना एंगल आया बेटा? आर हैंड का एंगल तो मेरा यहाँ पे 220 आया था बेटा। दिस 220 वैल्यू इज क्या है बेटा? Sir 100। एग्जैक्टली 100 बेटा, 105। 105 डिग्री राइट। 105. और मिनट हैंड का एंगल कितना है बेटा? 180। 180। लार्जर माइनस स्मॉलर, आंसर इज 75 डिग्री बेटा। नाउ 11:15 इसका बताओ भाई। 11:15 2.5. 112.5। Let's check बेटा। You are using any trick or you are solving this one directly बेटा? Sir दोनों के एंगल से ही कर रहा हूँ, कैलकुलेशन वैसे लिख के नहीं। इसकी बेटे ट्रिक भी थी, मैं थोड़ा ना भूल गया हूँ बेटा, मेरे को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो आप सिर्फ टाइम देख के बता दोगे, उसमें वो भी है। मैं भूल गया हूँ, मैंने कराया तो है पर मैंने दिमाग से स्किप कर रहा है क्या था वो ट्रिक जो आपको MCQ सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सर मैं एक बार एक्यूट recall एंगल का है ना? क्या बेटा? सर
acute एंगल निकालना है या फिर ऑब्ट्यूज ऐसे? हमें तो सिर्फ एंगल बोलते हैं, तो एंगल निकालना है बेटा, बस खत्म। दे विल नॉट आस्क यू एक्यूट और ऑब्ट्यूज। चेक करो बेटा, 112.5 ही आ रहा है बेटा। सर मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑब्ट्यूज एंगल भी होगा ना दोनों के बीच में, तो फिर हमें अक्यूट वाला निकालना हम होता है या फिर ये वाला ये हुआ ना, दिख नहीं रहा आप सर ये कैमरा में। अच्छा दिख रहा है सर। देखो, ये तो फिर व्हाट इज दिस एंगल? सर What इसमें is this 11 पे है तो वो ऑब्ट्यूज हो रहा है जो ऐसे नीचे से एंगल है सर, तो अगर वो निकालना होगा तो 247.5 हो रहा है। कितना आ रहा है बेटा? सर ऑब्ट्यूज वाला 247.5। 247.5। सर मैं इसमें Yes, sir. एक्यूट बताऊँ ना, 247. मैं इसमें एक्यूट बताऊँ ना। बेटा ये आंसर है, तो देखो ये कौन से निकले, देखो आपका 100 डिग्री में मेरा जो एंगल है वो ये एंगल है, ठीक है ना। और अगर आपको इसके अलावा निकालना है तो आप 360 में से 100 माइनस कर दो तो रेस्ट आ गया। ये आप दो, आपका इन दोनों का जो सम है हाँ वो सर 360 डिग्री आना एक्यूट चाहिए। वाला आ रहा है 112.5। बस 112.5. when they are asking, otherwise they will fix a word acute और obtuse बेटा, राइट। तो हमने acute निकालना सीखा है। अगर आपको obtuse पूछ रहा है तो 360 में से ये माइनस कर दो, obtuse आ गया। क्लियर है बेटा? सर में हाँ बेटा। सर इसमें 11 है इसलिए वो दोनों के बीच में नीचे से एंगल है वो ऑब्ट्यूज ही है, इसलिए अगर दोनों का टोटल निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 247.5 का। एक सेकंड, आपने बोला 11 15 पे, तो 12 ये रहा, 11 ये रहा, और 15 3 पे। सॉरी क्या बता दी मैंने? इलेवन और 15। सो ये वाला एंगल कह रहे हो बेटा आप? ये Yes, सर sir, बट ये आउटर एंगल आ रहा है हमारा 247.5। 247.5। नहीं सर वो वाला तो 112 होगा ना। बेटा ये मैं ये वाला पूछ रहा हूँ, इनर साइड वाला। दिस इज नोन एज आउटर साइड वाला। सर अगर हम टोटल निकालेंगे ना दोनों का और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 247.5 आएगा, लेकिन हमें अक्यूट बताना होता है तो इसलिए उससे 360 में से सब्ट्रैक्ट करना। यार ये सर कैसे? जो आपने बताइए उससे ऑब्ट्यूज निकलेगा, फिर उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे ऑब्ट्यूज कैसे निकल रहा है यार? राउंड तो एक सेकंड, जैसे हमारा एक सेकंड, मैंने तो ये रैंडम क्वेश्चन बनाया था अभी। अगर 12 यहां से स्टार्ट होता है, दिस इज 11 एंड देन 15, 11 15। सर तो 247.5 होगा और 90 होगा। 2 सर 337.5 हाँ और मिनट हैंड का 90। 90, ठीक है। तो दिस इज 247.5। ओके हाँ, ये तो यार एक्यूट बन रहा है डायग्राम से भी। एक रोटेशन कंप्लीट, डायग्राम शोज एक्यूट बट टेक्निकली इट इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एट दिस पॉइंट। सर 12 से हम काउंट करेंगे तो 11 तक तो वो पूरी रोटेशन कंप्लीट करने वाला है ना। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हाँ यही लॉजिक आ रहा है। सही बात है, सही बात है। ठीक 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 है बेटा, ठीक है, करेक्ट है। सो ये एक्यूट हुआ इसमें एंड दिस इज ऑब्ट्यूज, करेक्ट। तो ये बेटा पॉइंट है बेटा। देखो ये मैंने क्वेश्चन लिया आपके जेई का, तो हमारे वैसे सीबीएसई में इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, बट मेरा ये था कि मैं डिस्कस करूं। बट ये आज डिस्कशन में आया मेरे साथ कि इस वाले केस में ये ऑब्ट्यूज में आता है डायरेक्ट। चलो इसको ध्यान रखना है बेटे।
सर तो आंसर हम 112.5 लिखेंगे 247.5। नहीं बेटा, फर्स्ट टाइम जो दिस वे यू आर मतलब जो निकल रहा है ना इस कैलकुलेशन से जो निकल रहा है एक्चुअली दैट इज योर आंसर बेटा बेसिकली। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो ये वाला है। तो दिस इज यू हैव टू टेल एट फर्स्ट गो अकॉर्डिंग टू मी इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन सीबीएसई, राइट। बट मुझे लगा आज तक तो आया नहीं खैर सीबीएसई लेवल पे। सीबीएसई को कैसे जज करते हैं बेटा? हम सीबीएसई लेवल का जज करते हैं कि नवोदय स्कूल और जो गवर्नमेंट स्कूल के लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज दे आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो वो जिस लेवल के क्वेश्चन उन एग्जाम्स में देते हैं वो एक सीबीएसई का स्टैंडर्ड बन जाता है बेटा, ठीक है ना। बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये डिस्कस किया था कि लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट आल्सो बिकॉज आई हैव सीन सम कॉम्पिटिशंस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा। आई हैव सीन दीज क्वेश्चंस, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने वहां देखे थे, इसलिए मैंने आपको डिस्कस करना था। और अभी रिसेंटली किसी ने 4-5 दिन पहले मुझसे पूछा था, तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये वाला। ठीक है, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई जेई के मटेरियल में ये क्वेश्चन मिलते हैं तो आप, और हो सकता है इससे रिलेटेड कोई और कॉन्सेप्ट भी आएगा, जैसे यहाँ पे एक्यूट और ऑब्ट्यूज वाला कॉन्सेप्ट आया बेटा। क्योंकि देखो मुझे टाइम पता था, टाइम का एंगल बता दिया मैंने, अब मेरे दिमाग में अब आया ये फिगर, तो अब मैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाऊंगा फिर कि ये ऑब्ट्यूज और एक्यूट का ये एक पॉइंट मेरे दिमाग में अब आया है। इससे रिलेटेड जितने भी ट्विस्टेड क्वेश्चन है मैं फ्रेम करूंगा तब आपसे पूछूंगा मैंने, ठीक है बेटा। बट अकॉर्डिंग टू मी इफ दे आर आस्किंग दे आर नॉट मेंशनिंग बेसिकली, तो जो एंगल आपने निकाला इस समय 335 माइनस 98, दिस इज माय आंसर। अब वो जब एक्यूट और ऑब्ट्यूज वर्ड यूज कर रहा है देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल, बिकॉज बेसिकली क्वेश्चन है। वैसे तो ये दोनों ही ऑब्ट्यूज हैं, तो हम एक्यूट छोटे वाले को कंसीडर करेंगे ना। करेंगे, ये हो सकता है बेटा, ठीक है ना। और बेसिकली ये दे आर सेइंग एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड बेटे। आपसे एंगल क्या पूछ रही है? बिटवीन दी आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है ना। तो आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में ये वाला एंगल भी है बेटा, ये वाला एंगल भी है। तो ये कंफ्यूजन तो रहेगी। या तो मैं क्वेश्चन आप देखो जेई में देखो बेटा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, क्योंकि लैंग्वेज से क्लियर होता है बेटा। रिफ्लेक्स बोल सकते हैं ना, एक रिफ्लेक्स एंगल और एक ये रिफ्लेक्स। हाँ ये भी वर्ड यूज, वेरी गुड। हाँ ये वर्ड आपने सही बोला बेटा, रिफ्लेक्स एंगल उसको यूज कर सकते हैं बेटा, सही बात। मैं एक बार और चेक बेटा थोड़ा सा जेई की बुक्स वगैरह में, तो इस टाइप पे क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं तब डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ, ठीक है। और क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट बेटा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट सिस्टम। सो देयर वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज और डिफरेंट एंगल, ठीक है। उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। ओके, टेल मी द वैल्यू ऑफ sin -25 पाई बाई 4। इसकी वैल्यू बताओ बेटा क्या आएगी? Yes बेटा, anyone who find this value बेटा? लास्ट क्लास -1/√2 इसकी वैल्यू आ रही है -1/√2। Yes, all of you are getting -1/√2 बेटा।
Is this correct beta? First value, first, second, third, fourth. Is this correct? Minus 1 by root Sir, 2? it should be plus 1 by root 2. It should be plus 1 by root. Sir, minus. Minus. Plus minus confusion is here. मैं एक बार repeat करता हूँ बेटा फिर से देखो एक concept को कि what we have done. See, this is sine of minus 25 by 4 pi. So first is sine of minus theta is sine theta minus sine theta. So that formula we have used 25 by 4 pi. Then I told you this, when we have to break this 24 in such a way that the first term should be completely divisible by the denominator and rest one is the single pi only. Divide by 4. It is minus sine, it is 6 pi plus pi by 4. 6 pi beta. Now this is 0, pi, 2 pi, 3, 4, 5, 6. 6 pi plus first quadrant beta. 6 pi plus theta lies in first quadrant where all trigonometric ratios are positive. So it is positive. So negative sign as it is sine pi by 4 and it is minus 1 by root 2. This is my answer. Clear है बेटा बोलो? Yes, sir. Now find out the next one beta. What will be the next value? So what is written in the second question? Question is cos of minus 8 pi by 3. Minus 8 pi by 3. This will be 8 5 by 3 के इक्वल हो जाएगी ना वैल्यू. मतलब according to this formula it is equal to cos of 8 pi by 3 because cos of minus theta is cos theta. Minus theta lies in fourth quadrant where cos is positive. So minus next 1 by 2. it is 3 pi minus pi by 3. क्या आंसर आ रहा है बेटा? माइनस 1 by 2. माइनस 1 by 2. बिल्कुल सही आ रहा है, यही आंसर है. करेक्ट है बेटा. नेक्स्ट बताओ बेटा 10 of 19 pi by 3. Sir, root 3. Root 3. इसकी root 3. वेरी गुड. एंड cot 570 बेटा. रूट 3. इसकी भी root 3. ठीक है, तो all values are correct. Now what kind of question they will ask you? See, now evaluate. My question is evaluate sine minus 420 degree into cos 390 degree plus cos of minus 660 degree into sine of 330 degree. इसकी वैल्यू निकालो बेटा. Normally you have done this kind of question in class 10, but there sine 45 degree, cos 90 degree plus sine 30 degree, tan 45 degree. इस तरीके के क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वहां पे. But now it is beyond 360 degree values. ठीक है ना? तो अब इसकी वैल्यूज बतानी है आपको. पहले निकालो, यही रूल अप्लाई करनी है आपको. ठीक है, उससे पहले वैल्यूज निकालो, सिंप्लीफाई करो, व्हाट विल बी द आंसर वो मुझे बताओ बेटा.
Sir, -1/2. Answer is -1/2. One answer is -1/2 beta. Let's check another. Okay, one by one beta. What is the value of sine of -420 degree? क्या वैल्यू आई? -√3/2. -√3/2, राइट. cos 390 डिग्री की वैल्यू बेटा? √3/2. 390 की आई है आपकी √3/2. चेक करना बेटा 390 की. ठीक है, ये तो सही वैल्यू है. नेक्स्ट बोलो बेटा 660 डिग्री की. -1/2. इसकी -1/2. ये डाउटफुल लग रही है बेटा. cos of minus theta is cos theta. पॉजिटिव सर +1/2 आनी चाहिए. हाँ, एक Yes. 360 30 70 सर 720 -60 हो जाएगा ना सर. हो गया. ये सही है बेटा. ठीक है बेटा, ये चेक करो आपका नेगेटिव गलत आया है. नेक्स्ट बोलो बेटा sin 330 की वैल्यू. -1/2. -1/2 and calculation is -3/4 -1/4. So -4/4. आंसर इज -1. Yes. अब चेक करो बेटा, देखो -1 आंसर आ रहा है, सबका नहीं आ रहा. देखो तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आपने जो वैल्यूज ठीक लगाई है, इन सबके नंबर है बेटा. ठीक है ना, और तब फाइनल आपका आंसर ही करेक्ट आए. यस, इट इज -1. चलिए एक और देता हूं बेटा, इससे ऐसे ही क्वेश्चन, उसको फाइंड आउट करो. cos of 510 degree into cos of 330 degree plus sine of 390 degree into cos of 120 degree. निकालो बेटा इसको भी. भव्या मिश्रा बेटा, आपने कब ज्वाइन किया बेटा क्लास? आप अटेंडेंस के टाइम पे तो नहीं थे. सर मैंने 10 मिनट्स लेट ज्वाइन किया था. बेटा फिर आपने बोला भी नहीं. बताओ मैं आपको अटेंडेंस दूं या नहीं? तो आपने पूरी क्लास अटेंड भी कर ली. सर आप पढ़ा रहे थे तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया. मैसेज छोड़ा करो फिर एक व्हाट्सएप मैथ्स ग्रुप पे, ताकि फिर मैं अपना टाइम चेक कर सकूं. ठीक है ना, क्या करो पीछे बेटा. ठीक है, ओके सर. anyone who find the value of cos 510 degree बेटा? -√3/2. -√3/2. 510. सर 540 -30 आ जाएगा ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक 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 -√3/2. ठीक है. cos 330 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंड cos, तो ये तो सीधे √3/2 हो गया. देन 390 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, ये भी हाफ -1/2. और जाएगा -1/2. ये तो हाँ -1/2 आएगा. ये तो -1 आ जाएगा सर आंसर. सेम वही आंसर आ गया. ये तो चलो करेक्ट है बेटा. तो फर्स्ट जो हमने टॉपिक 2 पढ़े थे बेटा, फर्स्ट 2 टॉपिक्स वो यही थे, फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस के. अब इससे रिलेटेड है ना, एक और चीज ध्यान रखना बेटा. I think tomorrow I'll give you a worksheet which I'll upload on Teams beta. Whichever worksheet I will upload in Teams, that you have to submit beta. ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा.
आपको वो जो टीम्स में मैं अपलोड करूंगा वर्कशीट, दैट यू हैव टू सबमिट, राइट। और कुछ वर्कशीट में आपको प्रैक्टिकली दूंगा, दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, ठीक है। वो जब भी मैं आपको सबमिशन का टाइम दूंगा तब वो आप सबमिट करोगे, लेकिन जो टीम्स पे दूंगा उसका टाइम ज्यादा लंबा नहीं होगा, ईदर इन 2 days और 3 days यू हैव टू सबमिट दैट। और वो जो सबमिशन होगा टीम्स पे बेटा, वो इंटरनल असेसमेंट का पार्ट होगा, ध्यान रखना, इंटरनल असेसमेंट। उसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि सर मैंने सबमिट किया है, लेट किया है, आप इसको बढ़ा दीजिए टाइम, ठीक है। वो सफिशिएंट टाइम होगा, 2 दिन का, 3 दिन का, उतने ही पीरियड में आपको सबमिट करना। तो फर्स्ट जो आपको इंटरनल असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कशीट में दूंगा, वो मैं कल दूंगा और कल टीम्स पे अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको दूंगा मैथ्स ग्रुप पे भी, अदरवाइज यू विल गेट योरसेल्फ इन टीम्स पे भी नोटिफिकेशन आती है, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। दैट यू हैव टू सबमिट विद इन द टाइम विच आई हैव गिवन इन दैट असाइनमेंट में, जो भी टाइम दिया मैंने, ठीक है। और वो इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। और जब आपसे नोटबुक सबमिशन का टाइम दूंगा मैं, क्योंकि हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो 2 चैप्टर कंप्लीट आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ वो आपके, वो मैं सबमिशन का टाइम दूंगा, बिकॉज आपका फर्स्ट एग्जाम है, आपकी रिवीजन भी होगी उससे, और विद इन दैट पीरियड यू हैव टू सबमिट दी योर एनसीईआरटी सॉल्यूशन आल्सो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा इसका। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके कोई डाउट है बेटा फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के, वो भी साइमल्टेनियसली यू कैन आस्क बेटा, राइट। एंड फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ में, ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो सर। एक बार टीम्स पर जब सर आप असाइनमेंट सबमिट करोगे ना तो सर उसके बाद एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देना। बिल्कुल बिल्कुल डाल दूंगा बेटा, नोटिफिकेशन आई विल गिव यू इन द बोथ टीम्स में भी मिल जाएगा आपको, प्लस साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो मैथ्स का ग्रुप है उसी पे बेटा। थैंक यू सर। ओके, 1 second बेटा, डोंट लीव द क्लास। Okay, now you can leave it. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Welcome. sir.